Hello students, in this video lecture we will do some problems on type 3 particular integrals. We are studying particular integrals and we have already studied two types of particular integrals when where q is the right hand side of this kind of differential equation. So we have studied when q is e to the power ax, this was type 1. We have studied when q was sine ax or cos ax, this was type 2. Now we are studying type 3, which is when q is x into v type, where v is any function of x or it can be constant, but v cannot be equal to e to the power ax here. Okay, so let's see how can we solve such kind of problems. Here is the formula: 1 upon fd of xv, this is q. 1 upon fd of xv will be equal to x into 1 upon fd on v minus this into v. Now see this, इसको अगर आप देखेंगे, what is this? This is nothing but derivative of 1 upon ft, d by dt of 1 upon ft, derivative of 1 upon fd with respect to capital D. Okay, so you can also remember this formula like this, कि आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1 upon ft का डेरिवेटिव. Okay, so it is very similar to this kind of formula. We know that if f and g are any two functions of x, and suppose f into g is the product of f and g, then we know that derivative of f dot g is given by f into g's derivative plus g into f derivative, right? It is very similar, like 1 upon fd of x into v will be x into 1 upon fd of v माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे x गायब हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है इस टाइप के फॉर्मूला से, तो आपको ये याद रखने में थोड़ा हेल्प करेगा फॉर्मूला. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. नाउ सी, we will see how to solve such kind of problems. So this is problem 1. Okay, here we can see that this is a linear differential equation with constant coefficients, and right hand side this is q. So we can see that this is this kind, x into something. So this is v cos x is v. Okay, so using this formula हम सीधा pi देखेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बहुत ज़्यादा. So let's focus on particular integral. So pi will be of course 1 upon this x cos x. Okay, so using this formula we get x into 1 upon fd of v. That means x into 1 upon this of cos x minus this f dash upon fd square. Okay, what is f dash? This is ft. Remember this, ft is, in this question fd is d square plus 2d plus 1. So f dash t will be derivative of this, which will be 2d plus 2 plus 0. So 2d plus 2. Okay, upon ft ka square. So ft is this whole square into v cos x. Fine. So this is done. Now we come here. How will we find the value of this? Let me zoom in for you. Okay, so how will we find the value of this? Of course, we have already studied it. This is kind of cos ax. A is 1 here. So we will replace d square by minus of a square. That means minus of 1. So d square minus 1 हो जाएगा. Minus 1 plus 1 cancel हो जाएगा. यहाँ पर 1 upon 2d रह जाएगा. Okay, 1 upon 2d cos x हो गया. And minus comes here. And then 2d plus 2 को हमने ऐसे रहने दिया. देखिए ये एक्चुअली दो ऑपरेटर का प्रोडक्ट है अब. ओके, you can see this like this, 2d plus 2 into 1 upon d square plus 2d plus 1 whole square cos x. ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं.
Again, this is kind of cos ax. A is 1, so we will replace d square by -1. फिर से -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2d होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4d स्क्वायर, ठीक है। और 2d + 2 अभी भी यही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2 कैंसिल कर दिया, ऊपर आ गया d+1, नीचे हो गया हमारा 2d स्क्वायर। ओके, अगेन इसको इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। इन्होंने यहाँ पे 1/d स्क्वायर ऑफ cos x को cos x लिख दिया। ओके, 1/d स्क्वायर ऑफ cos x भी था यहाँ पे। ये बेसिकली व्हाट इज 1/d स्क्वायर मीन्स 1/d, रिमेंबर, सॉरी, 1/d is equivalent to 1 time of integration with respect to x. Okay, and 1/d square means 2 times integration with respect to x. Similarly, 1/d cube means 3 time integration with respect to x, and so on. So 1/d square means cos x को हमको 2 बार इंटीग्रेट करना है। So फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे cos x को तो sin x आएगा, एंड सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ ऑलरेडी था तो प्लस cos x आ गया, तो इतना हो गया। उसके बाद 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और ये d+1 ऑफ cos x हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा d ऑफ cos x + 1 इंटू cos x. d of cos x means derivative of cos x, so which is sin minus sin x. तो ये minus sin x है, and 1 into cos x ये है. So we get this. This is the answer. This is the particular integral. Okay. So the final general solution of this differential equation will be y is equal to this plus this. All right. It is written here. Now let's move to the next problem. This here q is this. Okay. This problem is also of this kind when q is x into v. Okay, but यहाँ पर आपको q इसको v को आप x cos x नहीं मानेंगे. Okay, some students can also do this like x square cos x को x into x cos x कर दिया. Okay, और उसके बाद वो सोचेंगे कि ये x cos x v है, बट अगर आप x cos x को v मान के चलेंगे और ये फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये 1/fd ऑफ x cos x एंड दिस ऑफ x cos x, ठीक है। तो इसको बहुत स्मार्टली करना है, और उसके लिए अभी हम टाइप 4 एंड टाइप 5 पढ़ेंगे, तब यहाँ पे वापस आएंगे हम। ओके, सो हियर वी हैव सम प्रॉब्लम्स ऑन टाइप 3 व्हेन q इज x into v type where v is not a to the power ax. For example, in question 1 here, you can see that q is this. So here what is v here? V is sin x. Here v is cos ax. Here v is sin x. Here cos x, here cos 2x. And here again, this is the same problem here. This kind of problem is there. तो इसको भी हम बाद में कर सकते हैं। एक बार हम ये समझ लेंगे एग्जाम्पल 2, उसके बाद ये भी आ जाएगा, ठीक है। Again, here v is sin x and this is okay. So try to solve these problems using this formula. But this was type 3. Now we move to type 4. Okay, students. So this is type 4 when q is this kind, e to the power ax v, where v is any function of x and a is any constant. A can also be a complex constant also. Okay, not necessarily a real number. A can also be a complex number, and v is any function of x or any constant. So इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, वो है ये 1/fd ऑफ दिस e to the power ax into v will be e to the power ax आउटसाइड ले जाइए, बाहर ले जाइए, और ये 1/fd प्लस a ऑफ v कर लीजिए, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि e to the power ax जो है यहाँ आ गया, और 1/fd के जगह पे 1/f ऑफ d प्लस a ऑपरेट हो रहा है v पर। ओके, so let's do some problems. Here we have some problems on type 4. We will jump to particular integral. Okay, so particular integral will be 1/this ft into q. Q is this, so we can see that this is kind of a to the power ax into v. What is v? Sin 3x, and a is 2. So जैसे कि फॉर्मूला में हमने देखा था
हमने क्या करना है, e x बाहर आ जाएगा और 1/f(d) की जगह पे, f(d) जो फंक्शन है उसमें d की जगह पे आपको d+a लिखना है। ठीक है, a यहाँ है, ये a की पावर में है, तो d की जगह पे d+a लिखना है और v पर ऑपरेट कर देना है। हियर वी हैव a is 3, तो d की जगह पे a is this, a is 2, सो d की जगह पे हमें d+2 लिख देना है पूरे एफ डी में। डी स्क्वायर हो जाएगा d+2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4 इंटू डी की जगह हो जाएगा -4 इंटू d+2 + 3, और इसको ऑपरेट कर देना है sin 3x पर, जो v है हमारा। ओके, एंड यू कैन सी दैट e⁻2x यहाँ आउटसाइड आ गया। फाइन, उसके बाद का प्रोसीजर सेम है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये स्क्वायर वगैरह ओपन करके क्या कुछ टर्म्स जो कैंसिल हो रहे हैं सिंप्लीफाई किया, उसके बाद ये इतना आ गया। एंड हम वी नो हाउ टू सॉल्व दिस। डी स्क्वायर की जगह पे हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -a² से, a इज दिस 3, सो -9 से डी स्क्वायर की जगह -9 कर दिया, और ये -1 यहाँ पे था, ये इसको सिंप्लीफाई किया और ये इतना आ गया। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, सिंपल। ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, अगेन दिस इज ऑफ द टाइप e⁻ax into v. What is v here? X square. So particular integral is 1/d square minus 2d plus 1. d square minus 2d plus 1 को आप d minus 1 whole square लिख सकते हैं। ओके, so this becomes this. अगर आप ये नहीं भी लिखते, अगर सपोज ऐसे भी रहने देते तो भी कोई कुछ चेंज नहीं आता। ओके, तो e⁻3x आउटसाइड आ गया, यानी ये हो गया, और d को हमें रिप्लेस करना है। देखिए a है हमारा यहाँ पे 3, a है हमारा 3, तो डी को रिप्लेस करेंगे d+3 से, सो डी हो गया d+3, और ये इतना हो गया, सिंप्लीफाई किया, ये इतना हो गया। एंड इस वाले को अभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम टाइप 5 अभी नहीं देखा है, जिसमें हम देखेंगे q इज इक्वल टू सम पॉलिनोमियल, q इज इक्वल टू दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल टर्म, तो ये अभी हम नहीं देख पाएंगे। ओके, now we have some problems on type 4. Here we can see that, compare this with e⁻ax v, we can see that v is x square, here v is x square, here v is sin x, here v is cos x, here v is sin x, and so on. Fine, so let's try to do one problem. For example, suppose we solve this, so particular integral will be what, 1/d square plus 3d plus 2, sorry, 1/d square minus 2d plus 4, d square minus 2d plus 4, और यहाँ पे e⁻2x भी है। ओके, एंड e⁻2x cos x, so this will become e⁻2x into 1/, and what will we do, we will replace d by d plus 2, because a यहाँ पे 2 है, तो d को d+a से रिप्लेस करना होता है, ये हो जाएगा d+2 होल स्क्वायर -2 इंटू d+2 plus 4 into cos x. This will become e⁻2x 1/, into 1/d square plus 4d plus 4 minus 2d minus 4 plus 4 of cos x. This will cancel, and we will get e⁻2x 1/d square plus 2d plus 4 cos x. Okay, e⁻2x. Here, how will we solve it? Here, compare this with cos ax, we get a is equal to 1. So we will replace d square by minus of a square, that means minus of 1. ये हो जाएगा -1 plus 2d plus 4 of cos x, and this will become 2d plus 3 of cos x, and this will become
Now we will multiply the numerator and denominator both by 2d minus 3. So नीचे denominator में हो जाएगा 2d का square, that means this, minus 3 square, that means this. Okay, so this will become 2d minus 3 into 1 upon this 1 upon 4d square minus 9 into cos x. Now 1 upon 4d square minus 9 into cos x हो जाएगा 1 upon 4 d square को रिप्लेस करना है अगेन minus 1 से, ये इतना हो जाएगा. Okay, now this will become, simplify this is minus 4 into minus 4 minus 9 minus 13. Okay, तो minus 13 को यहाँ लिख सकते हैं आप. This will become 2d minus 3 of cos x, and this will become minus e to the power 2x upon 13 into 2d of cos x, that means minus 2 sin x minus 3 cos x. So this is the answer. Multiply minus 1 inside, this will become plus, this will become plus. So this is your PI. All right, इस टाइप से क्वेश्चन को करना है. Now we move to type 5. Type 5 of particular integrals is the type when we have q is equal to h to the power m, where m is any positive integer. M can be 1 or 2 or 3 and any positive integer. Okay, so let's see some examples on this type. Okay, before going to the problems on type 5, you must know these two formulas. These are basically two particular kinds of binomial expansion. Okay, so this expansion 1 plus x to the power minus 1 is 1 minus x plus x square minus x cube plus x to the power 4 minus this and so on. So every even degree term is positive, like x square, x to the power 4, x to the power 6, and every odd degree term is negative. And here this is the similar kind of expansion, but all the terms here will be positive. That means 1 plus x square plus x cube plus h to the power 4 plus h to the power 5 and so on. सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे इसमें. ओके, तो आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी -1 है और यहाँ पे भी -x है, दोनों माइनस है, फिर सारे टर्म पॉजिटिव होंगे. और अगर यहाँ पे प्लस हुआ और यहाँ -1 हुआ तो इस टाइप का एक्सपेंशन होगा, जिसमें स्टार्ट आपको वही करने हैं टर्म्स, x की पावर 0 दैट मीन्स 1, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर बढ़ाते रहना है, और प्लस से शुरू करके अल्टरनेटिव साइन आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो प्लस से स्टार्ट करना है. ओके, तो ये दोनों एक्सपेंशन आपको पता होने चाहिए टाइप 5 वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. नाउ वी मूव टू द प्रॉब्लम्स. हियर इज प्रॉब्लम 1 ऑन टाइप 5. CF is this. Okay, we will not see it, we will jump to particular integrals. So PI will be 1 upon this 5 plus 2x, this is our q. Okay, 5 plus 2x, and remember that जो टाइप 5 मैंने आपको बताया कि q जो है x की पावर m टाइप होना चाहिए. यहाँ पर आप x की पावर m रखिए या फिर x का कोई भी पॉलिनोमियल लिखिए. ठीक है, लाइक q इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 भी होगा तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा टाइप 5 वाला जो हम अभी देखने वाले हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि x का कोई एक ही टर्म हो, जैसे यहाँ पे 5x की पावर 0 प्लस 2x दो टर्म हैं, तो इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, अगर एक और टर्म होता 5 प्लस 2x प्लस x की पावर 4 तो भी सेम प्रोसीजर फॉलो करते. सो व्हाट विल बी PI विल बी दिस 5 प्लस 2x. नाउ व्हाट विल बी डू, ये जो टर्म लिखा हुआ है, लेट मी जूम इन, ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर आपको ध्यान देना है, FT को. ओके, फोकस ऑन योर फंक्शन FD. इसको आपको इस तरह से लिखना है कि या तो आप ये वाला एक्सपेंशन यूज कर सकें या आप 1 माइनस एक्स की पावर -1 वाला एक्सपेंशन यूज कर सकें. जस्ट फोकस ऑन दी कांस्टेंट टर्म. ठीक है, को 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए आप ये कर सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 2, ये तो d वाला टर्म है, d स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पे ध्यान देना है 2 को.
2 को आप बाहर ला देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1/2, पहले ये ऐसे होगा, ओके, 1 when you will take 2 outside, this will become this 5d, okay, on 2 plus 1, this. Okay, let me do it here. 1/2, ठीक है, 2 यहाँ से बाहर आ गया and we will get d square plus 5d by 2 and plus 1 into 5 plus 2x, fine, and this will become 1/2. इस पूरे को आप देख सकते हैं आप, ये हो चुका है हमारा 1 प्लस दिस, दैट मीन्स 1 प्लस, इसको आप, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है डी स्क्वायर प्लस 5d/2, इसको आप x मान सकते हैं, तो ये 1 प्लस x इस टाइप का हो गया है। अब पावर -1 जब इस पूरे को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d/2 होल टू द पावर -1, ठीक है, 5 प्लस 2x। नाउ यू कैन सी दैट ये जो चीज़ है इसको आप x लिख सकते हैं, ओके, दिस इज योर x, सो you have now 1 plus x to the power -1, that means this, and we know the formula for this is 1 minus x plus x square minus x cube plus 1, तो ये हो जाना चाहिए 1 minus x is this d square plus 5d plus 2 plus x of square x square minus x cube, then plus x to the power 4 and so on, 5 plus 2x। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको देखिए आप 5 प्लस 2x को, 5 प्लस 2x पर जब आप d ऑपरेट करेंगे, d मीन्स d/dx, एक बार डेरिवेटिव निकालना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2, 2 हो गया। उसके बाद सो डी स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 2x क्या होगा, आपने एक बार d किया तो 2 आया, तो ये हो जाएगा d ऑफ 2, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव निकाला 5 प्लस 2x का तो 2 आया, तो फिर 2 का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका मतलब वो डी स्क्वायर को ऑपरेट करना, ठीक है, तो डी ऑफ 2 हो गया 0, डी ऑफ दिस इज 2 एंड डी स्क्वायर ऑफ दिस इज 0, तो ऑफ कोर्स डी स्क्वायर करने पर 0 आ गया, तो डी क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, बिकॉज दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डी ऑफ डी स्क्वायर ऑफ 5 प्लस 2x, ओके, दैट मीन्स डी ऑफ 0, दैट मीन्स 0, डी की पावर 3, डी क्यूब ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, डी स्क्वायर ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, तो डी क्यूब, डी की पावर 4, डी की पावर 5 से सारे ऑपरेटर जब 5 प्लस 2x पर ऑपरेट करेंगे तो 0 आएगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि हमको जो t की हाईएस्ट पावर है जिसको ऑपरेट हमने जब 5 प्लस 2x पर किया और उसने 0 नहीं दिया, वो है 1, ठीक है, 1 के बाद d की कोई भी पावर ऑपरेट करोगे वो 5 प्लस 2x पे, तो वो 0 दे रहा है, तो ये हमें याद रखना है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 into 5 plus 2x, okay, this is 5 plus 2x, okay, minus d square plus 5d/2, तो d square of this is 0, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, plus 5/2, d of this is 2 plus this plus, ना d स्क्वायर प्लस 5d/2 होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको पहले आप स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स d की पावर 4, d की पावर 4 जब आप इस पर ऑपरेट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है, उसके बाद 5d/2 का स्क्वायर आएगा, 5d/2 का, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ये आ जाएगा इतना प्लस 2 इंटू दिस दैट मीन्स 5d³ प्लस 5d/2 होल स्क्वायर 25d²/4, उसके बाद आगे भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, 5 प्लस 2x, सॉरी इस पर 5 प्लस 2x ऑपरेट कर रहे हैं आप, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, 5 प्लस 2x माइनस 5, डी की पावर 4 जब इस पर ऑपरेट हुआ 0 हुआ, डी की पावर 3 इस पर ऑपरेट हुआ 0 हुआ, डी स्क्वायर इस पर ऑपरेट हुआ तो 0 हुआ, ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये पूरे इस वाले ऑपरेटर ने 5 प्लस 2x पर ऑपरेट करके
हमें 0 दे दिया, ठीक है। तो इसके बाद वाले भी सारे ऑपरेटर ऑब्वियसली 0 ही देंगे हमें। तो आगे वाले सारे टर्म 0 होने वाले हैं, तो हमारे पास ये हो गया 1/2 एंड 5 कैंसिल, 2x, सही हो गया हमारा x। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनका भी जो आंसर है वो x ही आया है, ठीक है। बट इन्होंने बहुत ही स्मार्टली काम किया है। इन्होंने यहाँ पे देखिए, फिर जब 1 + x⁻⁻1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले थे हम, ओके, तो इन्होंने 5d/2 को ही लिया। ये जो 2d² / 2 है, या इसको ऐसे कह लीजिए, ये डी स्क्वायर है, जो ये डी स्क्वायर, इसको इन्होंने छोड़ दिया बिकॉज इन्हें पता था कि d² ऑफ 5 + 2x 0 होने वाला है, तो इस टर्म को हम छोड़ ही दीजिए। तो ये 1 + 5d/2 से ही आगे बढ़े। तो 1 + x, अब यहाँ पे x हो गया 5d/2, ओके। फिर 1 + x⁻⁻1, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया इन्होंने, ये, ठीक है। और उन्होंने बहुत ही शॉर्ट ही कर रखा है बेसिकली। इसके बाद 1 - इतना प्लस 5d/2 स्क्वायर, ये सारे 5d/2 की हायर पावर्स भी आने वाली हैं डॉट 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 में, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा, ओके। एक और क्वेश्चन से इसे समझते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें आप देख सकते हैं पी हो जाएगा इतना। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है कौन सा है, ये वाला 1 डिग्री वाला टर्म। ये हायर हायर डिग्री टर्म से सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म है एफ डी में 2d वाला टर्म। 2d से 2d को बाहर लाएंगे ताकि यहाँ पे 1 हो जाए। why do you want 1 here? Because we want to use this formula, this और this, तो 1 तो हमें चाहिए ही। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को उठाएंगे, ये बाहर ला देंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 प्लस ये जो भी है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो पावर -1 हो जाएगा इसका। ये देखिए यहाँ पे आप, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं d² कर, देखिए d(x²) होता है 2x, d(x²) हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2, और उसके बाद d³ हो जाएगा 2 का डेरिवेटिव 0। तो d³ और d की पावर 3 और 3 से ज़्यादा लेंगे तो 0 आ रहा है, ठीक है। पर d² 0 नहीं दे रहा है और d 0 नहीं दे रहा है, तो हमें d और d² तो लेने ही है। d² 0 नहीं दे रहा है, d 0 नहीं दे रहा है, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते। लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा था कि जो टर्म 0 दे रहा है उसको छोड़ दिया था, इनको एज इट इज़ रहने देना है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, ये 1 प्लस इस पूरे को x मान लीजिए, 1 + x⁻⁻1 वाला फॉर्मूला जो है हमारा, ये वाला 1 - x + x² - x³ प्लस सो ऑन, इसको यूज़ करके हमने ये लिखा। और क्वेश्चन ये है कि कितने टर्म लिखने हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 टर्म लिखे हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि कितने टर्म लिखने हैं। ऑब्वियसली उतने टर्म लिखने हैं, वो सारे टर्म छोड़ देने हैं ऑब्वियसली जो हमें 0 दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे जब t³ आना शुरू हो जाएगा, जिस टर्म में d और d² मिलना बंद हो जाएगा, उस टर्म को हम छोड़ देंगे। अभी यहाँ पे देखिए d और d² है, इस सेकंड टर्म में भी आप जब स्क्वायर उसे ओपन करेंगे इस स्क्वायर, तो ये d⁴ होगा, उसके बाद 9d² होगा प्लस 6d³ होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें d² वाला टर्म अभी भी है जो आपकी हमें चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद जो टर्म आने वाला है माइनस के बाद, d² + 3d/2 पावर 3, उसमें आपको d भी नहीं मिलेगा और d² भी नहीं मिलेगा। ये देख लेते हैं, d² + 3d/2 पावर 3, उसको आप देखेंगे, ये प्लस बी, पहले तो ये 1/2 की पावर 3, तो 1/8 को आप बाहर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा d² + 3d की पावर 3, a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब क्या होता है, a³, दैट मीन्स इसका क्यूब ये हो गया, प्लस b³, मतलब इसका क्यूब हो गया इतना, प्लस 3a²b, तो ये हो जाएगा हमारा इतना, प्लस 3ab², ab², ओके, ab², ये हो जाएगा। नाउ वी कैन सी इस पूरे एक्सप्रेशन में ना ही हमारे पास डी है ना ही d² है, ठीक है। तो इस वाले टर्म को हम छोड़ सकते हैं बिकॉज ये सारे के सारे ऑपरेटर जब हम x² पे लगाएंगे तो ये 0 होने वाला है, इसीलिए इन्होंने यहीं पे तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म ही लिया।
ओके, तो इस तरह से हम गेस कर सकते हैं कि कहाँ पे तक हमें रुकना है। उसके बाद 1 × x² हम हो गया हमारा x², t² + 3d को इस पे ऑपरेट किया तो ये देख सकते हैं d² ऑफ दिस हो गया कितना 2/2 ये 1 हो जाएगा, जो भी है ये आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है। ओके, लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद इन्होंने 1/d को ऑपरेट किया है यहाँ पे। 1/d का मतलब जैसे मैंने बताया था 1/d मीन्स 1 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन, तो 1/2 बाहर रह गया, 1/d ऑफ दिस मीन्स इसका इंटीग्रेशन ये हो गया एंड ये इससे कैंसिल हो गया था, तो 3x रह चुका था यहाँ पे, तो 1/d किया हमने x का, मतलब x का इंटीग्रल किया तो x²/2 आ गया। वैसे यहाँ पे इसका इंटीग्रल किया तो x आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा पी आई आ गया। तो इस टाइप से टाइप 5 वाले क्वेश्चंस करने हैं। ओके, नाउ वी मूव हियर, जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो हमने देखा था कि इस क्वेश्चन में जो q है वो x × v टाइप का है, बट v को x cos x नहीं मानना है, तो इसको बहुत ही स्मार्टली करना होता है कि आप देख सकते हैं x² और cos x, देखिए x² और e⁻i x कितना होगा, वी नो दैट x² e⁻i होता है cos x प्लस आइटा sin x। सो जो सॉरी इसको x² से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² cos x प्लस आइटा इंटू x² sin x, ऑलराइट, और हमें x² cos x दे रखा है, दैट मीन्स हमें इसका रियल पार्ट दे रखा है, तो रियल पार्ट ऑफ x² आइटा x इज x² cos x। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लीजिए, जैसे 5 + 3 आइटा है, इसका रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। वैसे ही अगर x² आइटा x ये है तो रियल पार्ट ऑफ x² आइटा x इज दिस। तो यहाँ पर जो q दे रखा है ये है हमारा x² आइटा x का रियल पार्ट, ये लिखा हुआ यहाँ पे। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो हम क्या करेंगे x² आइटा x का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे और उसका जो रियल पार्ट होगा वही इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ऑलराइट। सो हम 1/1 this प्लस 1 ऑफ x² cos x ना करके x² आइटा x को निकालेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे प्रोसीड किया है, इसको निकालना आसान इसलिए बिकॉज अब ये आप देख सकते हैं ये बन चुका है e⁻ax इंटू वी टाइप, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि 1/fd ऑफ e⁻ax v इज इक्वल टू e⁻ax इंटू 1/fd प्लस a ऑफ v, ओके। एक ही जगह पे यहाँ पे आइटा है और e⁻आइटा इस बाहर आ जाएगा और ये d को हम रिप्लेस करेंगे d प्लस आइटा से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x² हो जाएगा एंड देन यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है एंड रिमेंबर दैट आइटा इज √(-1), सो आइटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ओके, एंड i⁴ विल बी 1, इसको याद रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये हो जाएगा इतना। उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली ये टाइप 5 वाला जो हमने किया था, शायद टाइप 5 ही था, इसमें इसके पावर m होता है, उस बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है। यहाँ पे जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है वो 2di है, तो 2di बाहर ला गए तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये पावर 2 थी, इसलिए जब ये ऊपर आया तो पावर -2 हो गई, तो बेसिकली अब ये हो गया हमारा 1 + x⁻² टाइप, ठीक है। उसके बाद 1/आइटा को माइनस आइटा लिख दिया इन्होंने, ये भी बहुत आसान है, देखिए आप 1/आइटा कैन बी रिटन एज minus of -1/आइटा, right, minus of आइटा स्क्वायर अपॉन आइटा, and this is minus आइटा। 1/आइटा is always equal to minus आइटा,
तो 1 अपॉन आइटा का माइनस आइटा लिख दिया तो ये ऐसे हो गया। तो ये हमारा हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया, इसका फॉर्मूला क्या कैसे निकाला, बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला। ओके, बट वी वांट 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जस्ट अ मिनट, 1 माइनस एक्स to the power n, 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 x square plus n into n minus 1 into n minus 2 factorial upon factorial 3 x cube plus so on। ठीक है, x की जगह हम यहाँ पे रखेंगे माइनस डी आई बाई टू, माइनस डी आई बाई टू, और n की जगह पे माइनस 2, और ये एक्सपेंशन आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि देखिए एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो ये 2 आएगा, डी करेंगे तो 2x आएगा, बट इसके बाद डी की पावर 3 डी की पावर 4 करेंगे तो 0 आएगा। तो हमको वो टर्म्स लेने हैं जिसमें डी या डी स्क्वायर कम से कम एक तो आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ले रखे हैं, इसके बाद इन्होंने आगे प्रोसीड किया और ये इनका जो आंसर आया वो आया इतना। तो ये है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऑफ दिस, बट हमें इसका रियल पार्ट चाहिए। तो इसका रियल पार्ट आएगा जिसमें आइटा नहीं है, जिसमें आइटा नहीं है। दैट मीन्स cos x upon minus cos x upon 4 into this, and sin x upon 4 minus sin x upon 4 into x cube by 3। इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा टाइप का बनेगा। तो जो अल्फ़ा वाला पार्ट है वो लिखना है आपको, वो ये है। ओके, रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट होगा वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होने वाला है। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। So I think we have covered all the 5 parts of particular integrals। इसमें हमने देखा when q is e to the power ax, when q is sin ax or cos ax, when q is x into v, where v is not e to the power ax, then when q is e to the power ax v, and then when q is x to the power m or any polynomial. Okay, so this was it. Thank you very much.